हमारे बच्चों को आगे जाके जॉब्स की ज़रूरत होगी, दुनिया में नौकरियां कम हो रही हैं, तालीम में मदद की ज़रूरत होगी। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट है और हम इंडिविजुअली तौर पे, इनफरादी तौर पे बहुत कामयाब लोग हैं, लेकिन कलेक्टिवली आई एम सॉरी टू से वी आर लिटरली फेल। हमको बहुत सख्त ज़रूरत है काम की। मुझे कोई शौक नहीं है, दिल का मरीज आदमी हूँ, मेरी फैमिली मुझे मना करती है, मेरे बच्चे मुझे मना करते हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है रियली रिटायरमेंट आई एम गोना पे बैक टू माय कम्युनिटी, नॉट जस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी, एवरीबॉडी ऑफ आई प्रॉमिस। This position that I am running for is not a political position, it's charity. Assalamu alaikum. You know, my friend Salman Razaki, he said something that. Say thank you to the Pakistan community. As Nabil said, I want to be sheriff right now. A lot of people are talking about PhD. So some started in the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum, everybody. To run for this position. It's important कि आपको थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड पता हो कि हम क्या सर्विस करते आ रहे हैं, that is the reason why we're standing here. So I always believe in कि you have to, we are Pakistanis and we need to make an impact. And how are we impacting when we are? तो यकीनन आपने रिपोर्ट देखी होगी, बोर नहीं हुए होंगे। मैंने ये रिपोर्ट यूं दिखाई कि इसकी दो रीज़न है। ह्यूस्टन में मैंने आज से 32 ईयर बैक, मुझे अब याद नहीं सही से, जनरल कम्युनिटी में किसी फंक्शन में, जनरल कम्युनिटी के किसी फंक्शन में एक साथ 400-500 लोगों को, जिसमें ख़वातीन, यंग जनरेशन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, अगर मैंने देखे थे तो 34 ईयर बैक PAGH एक तंजीम है ह्यूस्टन में, जो अब किस्सा हो चुकी है तकरीबन। उसके फंक्शन में देखे थे। न्यूयॉर्क से गया था मैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि न्यूयॉर्क में और शिकागो में और वाशिंगटन DC में शादियों में और अपना के फंक्शंस में तो यकीनन इतने लोग जमा होते हैं, या फंड-रेजिंग डिनर हो तो वो भी जमा होते हैं, मगर जो कम्युनिटी का कोई इशू हो तो वहाँ कभी नहीं। फंड-रेजिंग में भी 300 तक ही लोग जमा होते हैं, मगर जो कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं उस पर लोग जमा नहीं होते, चाहे कितना खाना कर लो, कितना गाना नाच गाना कर लो, नहीं जमा होते। एक तो ये रीज़न था कि ये 34 ईयर के बाद मैंने उसी ह्यूस्टन में ये फंक्शन उसी PAGH के प्लेटफार्म के हवाले से देखा कि सलमान रज़ाकी और उनके दोस्त, जिसमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त शहजाद हसन और रियाज कुरैशी, जो बहुत बड़ा ऑटो शॉप चलाते हैं, जो कम्युनिटी की खिदमत ज़्यादा करता है, मुझे नहीं पता वो कितने पैसे कमाते हैं, मगर सबकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। रशीद भाई अल्लाह भला करे, और हमारे चिश्ती साहब जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं,
غلام، اس طرح بہت سارے ہمارے یار دوست وہاں پر موجود تھے. نجم شیخ جو پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے ہیوسٹن میں بڑے مشہور ہیں، سبھی جانتے ہیں انہیں تقریباً. اور بہت سارے دوست، سعید وارسی ملے اور زبیر ملے. پتہ نہیں مجھے نام اگر میں بھول رہا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں. میرے بہت سارے دوست وہاں موجود تھے. ایک اٹریکشن تو یہ تھا کہ دوستوں سے ملاقات ہوگی. پھر میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ جتنی پاپولیشن تھی اور جتنے لوگ سوفسٹیکیٹڈ کہنا چاہیے، مینرڈ، مطلب کوئی ایک ایسی آواز نہیں تھی جو آپ کے کان کو بری لگے. اور بہت خوبصورت فنکشن تھا. رفاقت نے پہلے تو ڈیفینس ڈے بنانے کی کوشش کی، پہلے ترانے گائے انہوں نے خوب پاکستان کے. پھر یقیناً وہ اپنے جو ان کی شناخت ہے اس حوالے سے، اور رات گئے کوئی تقریباً 12:30-1 بجے تک یہ فنکشن چلتا رہا. جس فنکشن کی سب سے امپورٹنٹ بات تھی میرے نزدیک، میں نے کچھ لوگوں سے ووٹنگ کے حوالے سے بڑے طریقے سے بات کی. تو پہلے تو لوگوں نے کہا، اکثریت کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کہا ہم پاکستان کے معاملات میں انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم چاہتے ہیں اب ہمارے بچے یہاں سسٹم میں مرج ہوں، یہاں کی پولیٹکس میں. کہ اس فنکشن میں 2 لوکل پولیٹیشین بھی موجود تھے اور جو اسٹیج پہ بھی آئے اور بڑے گھلے ملے ہوئے تھے، اور بہت سارے ان کے جاننے والے تھے وہاں پر. وہاں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک افسر بھی ملے، ڈاکٹر صاحب، اور بہت سارے لوگ تھے. تو میں نے جب اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی تو اکثریت نے تو کنی کترانے کی کوشش کی، جسے کہنا چاہیے. پھر میں نے ان سے کہا سیریس یہ آپ لوگوں کا ایشو ہے؟ ان کا یہ ہمارا کہاں سے ایشو ہے؟ تو ایک صاحب نے جو ایک وقت ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے اس کو ہنستے ہوئے اپنے طور پہ سنایا کہ آفاق بھائی بہت شکریہ حکومت پاکستان کا کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا. میں کہا جو لوگ اندرون پاکستان رہتے ہیں وہاں ہمارے بہن بھائی، یار دوست، شہری پاکستان کے، انہیں تو ووٹ کا حق دے دیں کم از کم. تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں بھی ووٹ کا حق دیا. یہ تو ہمیں یہاں بکھیرنے کے لیے اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ووٹ کا حق دیا ہے کہ ہم وہاں کے معاملات میں الجھے رہیں اور یہاں سے صرف نظر کریں. تو آپ نے یہ سنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اب میں آتا ہوں سفارتکاروں کی طرف. اب میں نارتھ امریکہ میں، امریکہ کینیڈا میں 1-2 ایمبیسیز ہیں اور 7 کونسلیٹ ہیں. میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اور سب نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ کسی طور پہ بھی ہماری شناخت ظاہر نہ ہو. آپ یقین کریں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، سب نے مجھ سے یہ کہا، انتہائی سینئر لوگ، کہ آفاق بھائی ہم تو لکھ کر بھی بھیج چکے اور ہم سے پہلے والے بھی کہ یہ جو یورپ، امریکہ کے اور کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے پاکستانی ہیں جو ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، خدا کے لیے انہیں نہ الجھائیں اس چکر میں. یہ اپنی راہ سے گمراہ ہو جائیں گے. ان کے بچے آلریڈی سسٹم کے بچے ہیں. پاکستان نے اور پاکستانی کمیونٹیز نے جو جہاں بھی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ ہمارے بچے پاکستان سے انٹریکٹ کرتے. یہ جب تک ہمارے ایج کے لوگ ہیں، یہ پاکستان جب تک زندہ ہے، یہاں پر پیسے بھی جا رہے ہیں اور پرفیوم بھی، ٹائیں بھی، سوٹ بھی. مگر اور اب تھوڑی سی اویئرنیس یورپ میں تو ہے، نارتھ امریکہ میں اب اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ لوکل پولیٹیکل سسٹم میں جائیں، مین اسٹریم میں، لوکل پالیٹکس سے لے کے مین اسٹریم پالیٹکس تک جائیں تو ہم انہیں ڈسٹریکٹ کریں گے اگر یہ ووٹ کا حق دے گا. اور پھر ووٹ یہاں کمیونٹی میں جو لوکل اور مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس میں ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. کہاں سے ڈالیں گے؟ اچھا پھر جو اولڈ جنریشن تھوڑے بہت کہیں پاکستان سے انٹریکٹ بھی کرتی ہے تو اسے کمپیوٹر کا کتنی سمجھ ہے، وہ اس چکر میں کہاں پڑے گی. اور ماں باپ بچے کتنا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم نے تو پاسپورٹ کا جو فارم رکھا ہے اور ویزے کا آن لائن، اس میں پرابلم ہو رہی ہے، کال کر کے ہمیں سمجھانا پڑتا ہے ایک بات. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر بھائی ان کے فیصلے ہیں، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آفاق بھائی ہم تو اپنا پاسپورٹ ویزا بنوانے کے لیے مہینوں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ بنوائیں نہ بنوائیں، جائیں نہ جائیں، ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. اب تو آن لائن بھی ہو گیا مگر اس میں کہ چلو یار کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے. مگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے نا 100% اب وہاں پڑے گا اور ہمیں ایندھن کے طور پر اب استعمال کیا جائے گا. تو جناب یہ تو تھی جو یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو دکھایا. اب میں جو نیو یارک میں ایک فنکشن ہوا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی تعریفیں کی، جنہوں نے ابھی شہریار آفریدی کو انٹرٹین کیا تھا، انہی کی موجودگی میں شہریار آفریدی نے امریکنز کا مذاق اڑایا، ان پہ طنز کیے، ان کے بارے میں جو گفتگو کی وہ آپ سب کے علم میں ہے. وہ شہریار آفریدی جو قرآن کی قسمیں کھا کے، حلف اٹھا کے جھوٹ بولتا ہے، اور جو کشمیر کمیٹی کا
चेयरमैन है, अल्लामा हफीज़, उनके दोस्तों ने एक फंक्शन किया जो यकीनन हिमायत में था कि जी बड़ा शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। वहाँ जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क में 2 जर्नलिस्टों को छोड़ के मसूद हैदर और मियां अजीम जो दोनों वहाँ नहीं थे, जो जीनियस जो हमारे सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, उनके अलावा न्यूयॉर्क में 4 बड़े जर्नलिस्ट हैं जो लोकल डोमेस्टिक मामलात में इन्वॉल्व हैं, जो रोज़ाना की बेस पे कवरिंग, जो 2 उनमें से मोहसिन ज़हीर और माविज़ पाकिस्तान के टेलीविज़न को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 फ़र्रुख और मियां फ़हीम लोकल पैमाने पर काम करते हैं। उनके मैं आपको ख्यालात सुना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट पे, उसको सुनिएगा फिर अंदाज़ा लगाइए। मैं बताऊँ कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अभी बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ इसके हक़ में और मुखालफत में, फिर मैं जाके ज़हन बनाऊँगा। और काश ये पार्लियामेंट में ये बड़ी मुदल्लल और मुफस्सल बहस होती, फिर ये कानून बनता, ताकि हम अपने जहन बनाते। जब ये कानून बन चुका होता तो हमारे जहन ऑलरेडी बने होते। तो बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी की हैसियत से सच्ची बात तो मेरा ये है कि मैं अभी तक मुझे डबल माइंडेड है, मुझे ये पसंद भी आ रहा है और जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि माविज़ भाई ने भी कही कि लोकल, ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। अगर आपने कामयाब होना है, यहाँ पे वोट डालेंगे तो आपका वोट पाकिस्तान में भी मैटर करेगा। मुख्तसर से ही कहूँगा कि ये जैसे भी बातें भी हैं, ये वाकई भी मोहसिन भाई ने बहुत सही कहा कि अभी बहुत सी चीज़ें देखनी है कि इसका क्या वो रिजल्ट आएगा, इसका क्या नतीजा आएगा और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। मेरी नज़र में जो जितने अरसे से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जितने अरसे से मैं कम्युनिटी को देख रहा हूँ, अपनी वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में जिस तरह अदम बर्दाश्त, तासुब, नफरत और एक दूसरे से मतलब जो होता है वो जो बढ़ता जा रहा है, वो अंसर यहाँ पे भी आता जा रहा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमें यहाँ के मामलात को मद्देनजर रखना चाहिए सबसे पहले कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें हमारे क्या फ़राइज़ है और हम किस तरह इस कम्युनिटी में, इस माशरे में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो मेरे अपना एक नुक्ता नज़र है कि ये वोटिंग राइट का जो मसला है कि कहीं ऐसा ना कि मुझे खदशा हो कि जिस तरह भी किसी मेरे भाई ने बात की है कि वही लड़ाइयाँ झगड़े गुजरात की, गुजरावाला की, कराची की, लाहौर की, कि एक दूसरे से नफरत का बढ़ेगा कि भाई ये मेरा उम्मीदवार है तो मैं इसे वोट दूंगा तो दूसरा उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा। ये चीज़ें मेरी ख्वाहिश है कि अगर किसी को एक तकलीफ किसी के जिस्म में होता है, पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। यकीन माने पाकिस्तान में कुछ होता है शायद हम उससे ज़्यादा बेचैन होते हैं। आप बस ये बताएं कि क्रिकेट नाइट के लिए कौन नहीं जागा, इस मरतबा तो सुबह हुआ था, क्रिकेट के लिए कौन परेशान नहीं हुआ। मैंने रोते हुए अमेरिका में लोगों को देखा है। हमारी मोहब्बत को चैलेंज ना करें, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है, उस पर होना चाहिए। दूसरी बात या आखिरी बात मैं कहूँगा कि खुदारा जो है ये तकसीम का अमल ना बन जाए, इसलिए कि अभी तक हम एक दूसरे के साथ एहतराम से पेश आते हैं। यहाँ बैठे हुए राजा साहब बैठे हुए, दूसरे बैठे हुए, लेकिन जब यहाँ हम एक दूसरे के, अगर गुजरात में कोई उम्मीदवार है तो उसकी लड़ाइयाँ यहाँ ना शुरू हो जाएं हाथापाई, क्योंकि हमें उसके लिए तरबियत की जरूरत है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो हमारा इख्तिलाफ दुश्मनियों में यहाँ भी ना बदल जाए, यहाँ भी हम पूरी विजिबिलिटी के साथ एक दूसरे से नफरत करते हुए, क्योंकि अब पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो पाकिस्तान की सियासत अब नफरत की सियासत है, अब ताने की सियासत है। अब किसको चोर मैं कहूँगा, किसको मैं करप्ट कहूँगा, किसको मैं जानी कहूँगा, किसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलत साबित करने की कोशिश करूँगा, ये सियासत हो गई। अगर हम ये सियासत यहाँ लेके आ गए और अपने ही भाइयों को हम जो है जानी और करप्ट साबित करने में लग गए, वो खराबी होगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। कुछ लोगों ने ओवरसीज वोटिंग की मुखालफत की, कुछ ने हिमायत की। तो जो लोग मुखालफत कर रहे हैं मैं उनको ये कहूँगा हो सकता है इसके नताइज मुस्बत निकले, और जो लोग बहुत ज्यादा इसको मुस्बत समझ रहे हैं वो ज्यादा खुशफहमी में ना रहे, हो सकता है कुछ आगे नीचे। देखिए आपने रिपोर्ट, तो ये आप खुद फैसला कर सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखें ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनके दरमियान कोई बड़ी तंजीम नहीं है, कोई प्लेटफार्म नहीं है जहां ये बहस हो सकती थी कि जनाब हमें वोट का हक़ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कहीं हम सर जोड़ के नहीं बैठे अपने तौर पे भी, और ये फैसला हो गया। मतलब हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है ना कि खान साहब को तो ये यकीन है कि 70% वोट मुझे पड़ेंगे। अब 50-90 लाख कहते हैं ना वोट जो है, जो बहुत सारों के नज़र के शनाख्ती कार्ड नहीं है, मगर जिसका भी कॉन्सुलेट में, एम्बेसीज में और जो डिप्लोमेटिक कोर है हमारा, वहाँ जहाँ कहीं भी हम ओवरसीज़ का नाम मौजूद है, अब उनके नाम के जो है ना वोट पड़ जाएंगे, और ये 50-60 लाख वोट आप देखिएगा कन्फर्म पड़ा करेंगे, और जिस तरफ ये वोट पड़ेंगे वही जीत जाया करेगा। और वोट का पासवर्ड किसके पास होगा
वो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को हक दे दिया गया है वोटर लिस्ट का। नादरा किसके कंट्रोल में वो आप सबको पता है। तो ये गेम यहाँ पर होने जा रहा है। अब आप कुछ दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट का नाम नेहाद मीडिया है, जो हाल ही में तरतीब दिया गया है पाकिस्तान की वजारत इत्तलात की सरबराही में कहना चाहिए, और PAUJF क्या कहलाती है वो, उसकी जूनियर एक ऑफिशियल के नाम से तंजीम बनाई गई। उसमें जो जाली लोग डालेंगे उसमें अमेरिका के लोग भी हैं जिनका सहाफ़त से कभी लेन देन नहीं था। अब वो आपको सामने नज़र आएंगे। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो पहले अरेस्ट हो चुके हैं। इसी डिप्लोमेटिक कोर ने उनको आगे लेकर आए थे। मलिया लोधी लेकर आई थी और मलिया लोधी ने उनको बड़ी हिमायत भी की क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का खेल था। फिर वो पकड़े गए एक केस में, मैं उसकी गंदगी की डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर पिछले दिनों उन्होंने एक डिप्टी काउंसिल को, जो न्यूयॉर्क के काउंसलर हैं, डिप्टी काउंसलर, उनकी तौहीन की, उनसे बदतमीज़ी की और उसको एक इशू बनाने की कोशिश की। फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक मीडिया है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो नामवर तारीख़ी ब्लैकमेलर पाकिस्तान के सियासी और सहाफ़ती हलकों में मशहूर है। उसने एक पंटर वो इसी तरह का जाली रखा हुआ है, उन लोगों के ख़िलाफ़ खबरें छापता है और यहाँ पर वो वायरल की जाती। जाली मीडिया है, उसका कोई पाकिस्तान में भी कोई कहीं कोई वजूद नहीं है। तो वो जो पिछले दिनों पकड़े गए थे, अब उन्होंने डिप्टी काउंसिल जनरल की तौहीन की, उनसे लड़ने की कोशिश की। एक और केस में एक और लोकल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है काशिफ, उनके फंक्शन में बदतमीज़ी की, उसने अरेस्ट करवा दिया। जब अरेस्ट हुए, कोर्ट में पेश हुए ज़मानत के लिए, तो जज से फरमाते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान मुझे बहुत सबसे बड़ा सिविल अवार्ड देने जा रही है, आप भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर, उनसे कहें, रिकमेंड करें कि मुझे जो है वो भी अवार्ड दें। तो आपको अंदाज़ा है कि जज ने क्या किया होगा। बिल्कुल सही सोचा, जज ने उसे 1 हफ्ते के लिए मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया। तो ये मीडिया भी सरगर्म होगा हिमायत में, आप देखिएगा आने वाले दिनों में। बाकी आप खुद फैसला कर लें कि क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पर, कैसे गुजर बसर हो रही है। मैंने आपको बता दिया कि वोट के ऊपर जो मामलात आगे सामने आएंगे वो एक तारीख़ी वाक़या होगा कि यहाँ पर भी वही हालात पैदा होंगे जो पाकिस्तान में है, जो एमआर फ़ारूक ने कहा, जो माविज़ ने कहा, जो मोहसिन ज़हीर ने कहा, जो मियाँ फ़हीम ने कहा कि लोग तकसीम होंगे, तकसीम दर तकसीम होंगे। और लोकल पॉलिटिक्स में जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, उसमें इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ से पीछे हटेंगे और हमारे बच्चों के सामने यहाँ हमारा तमाशा लगने जा रहा है। और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहेगी जितवा देगी, जिसे जा देगी हरवा देगी। हम $30 बिलियन भेजते हैं जी। गुलाम सरवर जैसा वज़ीर कहता है कि देखें जी उनको वोट का हक मिलना चाहिए, वो $30 बिलियन भेजते हैं। मतलब इसके अलावा हमारी और कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, वोट तो दे सकते हैं हम, मगर मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वज़ीर आज़म, सदर नहीं बन सकते। हमारा टोटल ये स्टेक है। और मज़े की बात यह है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहूँगा कि कभी गौर कीजिएगा कि वोट तो वहाँ दिया जाता है ना जहाँ पर आप टैक्स पे करते हो, जहाँ आप सड़कों को इस्तेमाल करते हो, पानी को इस्तेमाल करते हो, बिजली को इस्तेमाल करते हो, रोज़ाना की ग्रॉसरी ख़रीदते हो, रेंट देते हो, मकान ख़रीदते हो, बैंक को डील करते हो। इनमें से कोई एक चीज़ है कि आपको निज़ाम के बारे में कुछ नहीं पता। जो भोग रहे हैं, जो जलील हो रहे हैं, जो रुस्वा हो रहे हैं, जो तकलीफ़ से करा रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला अब आपके नाम पर हुआ करेगा। वो आपके पैसे लेने के एवज़ आपके वोट के बदले में और मज़ीद तकलीफ़ में, अजाब में आएंगे। इसकी रोशनी में फ़ैसला कर लें कि आपके नाम के साथ यहाँ क्या क्या खेल खेलने की कोशिश। आखिरी बात ये बताता चलूँ कि ये ओवरसीज़ वोट का जो ड्रामा है, ये सियालकोट में रहने वाला एक वकील जो आफिया सिद्दीकी के लिए भी मुहिम चलाने यहाँ आता है, और मेरा यकीन कामिल है कि वो किसी ख़ास तबके को रिप्रेजेंट करता है। उसने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो है कहते हैं कि पाकिस्तानी वोट के लिए मुकदमा किया था, पटिशन दायर की थी। फिर एक खातून, कहते हैं खातून ने पहले किया था, फिर उसने उसको टेक ओवर कर लिया। खातून न्यू जर्सी आ गई और कि जी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट दिया जाए। ये गेम करवाए जाते हैं पीछे से कि जनाब इसको ज़रा आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें आप लोग सोचें कि आप में से कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, वहीं के रहने वाले वहाँ पहुँचे। और दिलचस्प बात यह है कि आपकी इतनी हैसियत है, आपके $30 बिलियन का जिक्र तो होता है। यहाँ के मीडिया को, मैं तो मीडिया नहीं चलाता ना, इसलिए कह सकता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इश्तहार हैं वो भी पाकिस्तान के मीडिया में शाये होते हैं। यहाँ के मीडिया को पनपने नहीं दिया जानबूझकर।
बड़ी लंबी तफसील है कि एक बात जमशेद मार्कर ने अर्ली 80s में कहा था, जब वो पाकिस्तान मिशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन के, कि देखें अमेरिका में इंडियन मीडिया कितना फ्लोरिश कर रहा है, मगर हमारा यहाँ कोई मीडिया नहीं है और हमें भी मीडिया बनाना चाहिए। काश जमशेद मार्कर ज़िंदा होते, वो देखा ज़िंदा तो रहे काफ़ी अर्से उसके बाद भी, कि इंडियन मीडिया को इंडियंस ने और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने और इंडियन हुकूमतों ने कितना सपोर्ट किया और कैसे आगे बढ़ाया और कैसे यूज़ किया अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। वो इंडियन NRI जिन्हें कहा जाता है, पूरे अमेरिका से नहीं पूरी दुनिया से, इस साल उन्होंने $87 बिलियन अब तक भेज चुके हैं और कहते हैं कि इस साल के एंड तक 95 से 98 बिलियन डॉलर भेजेंगे। 30 बिलियन कहाँ, 98 बिलियन। मगर इंडियन ने वोट का हक नहीं दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि आप यहाँ के सिस्टम में मर जाओ और यहाँ पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जैसे यहूदी हैं, आप जब हमें हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इन्हें वहाँ उलझा कर रखा जाए, इन्हें वहीं का कैदी बना के रखा जाए और वहाँ का खेल जारी रखने के लिए इन्हें ईंधन के तौर पर जला दिया जाए। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।